अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। In the previous वालेकुम lecture, अस्सलाम we सर। have studied the concept of Phillips curve. Phillips curve basically shows the relationship between the inflation and unemployment. And we have studied that how Professor Phillips explains the negative relationship between inflation and unemployment, and empirically and theoretically justify this relationship. Then we have also observed that in the further research process in late 1970s and in the early 1980s, it has been observed that inflation and unemployment both are rising at the same time. So it was a question on the previously estimated Phillips curve, which shows the inverse relationship between these variables. So then positively sloped Phillips curve is justified through adverse aggregate supply shocks. Then we have also studied the long run Phillips curve, which is vertical slope. So today we are going to start the consumption theory. As I have said in the previous lecture, that you must go through the consumption theories from the book of Mancave so that we can study these theories in detail. Chapter 17, Consumption, book Macroeconomics, 7th edition by Mancave. So in this chapter, we will learn the following topics: an introduction to the most prominent work on consumption, including Keynesian consumption function, Professor Irving Fisher's intertemporal budget choices, Franco Modigliani, the life cycle hypothesis, Milton Friedman, the permanent income hypothesis, Robert Hall, the random walk hypothesis, David Lebson, the pull of instant gratification. So these are the consumption theories. Here is the first one: Keynesian, Professor Keynes consumption theory, Keynes conjectures. First major point is that the MPC, marginal propensity to consume, the value of MPC is in between 0 and 1. The value of MPC is in between 0 and 1. First of all, I would like to tell you what is MPC. MPC is marginal propensity to consume. Basically, it is the ratio of change in consumption to change in income. It is the ratio of change in consumption to change in income. Means that कि हमारी income change होने से हमारा consumption level कितना change होता है. This is MPC and its value is in between 0 and 1. केंद्रीय कंजम्पशन फंक्शन के मुताबिक जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उसकी वैल्यू जो है वो 0 और 1 के दरमियान रहती है. दिस इज आल्सो नेम्ड एज केंद्रीय साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन. केंद्रीय साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी यही कहता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है इसकी जो वैल्यू है वो 0 और 1 के दरमियान रहती है. मतलब एमपीसी 0 नहीं हो सकता और ना ही 1 हो सकता है, बिकॉज एमपीसी 0 होने का मतलब है कि इनकम बढ़ने पर आपकी कंजम्पशन नहीं बढ़ रही. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब इनकम बढ़ती है तो एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है कि किसी ना किसी लेवल पर आपका कंजम्पशन लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाता है. इसी तरह एमपीसी जो है वो 1 नहीं हो सकता, क्योंकि एमपीसी 1 होने का मतलब है कि जितनी आपकी इनकम बढ़ी है उतना ही कंजम्पशन लेवल बढ़ गया है. तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप सेविंग भी इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं. So the value of MPC is in between 0 and 1 by Keynesian consumption theory. And second point is that assumption, or you can say that contribution is that average propensity to consume falls as income rises. कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करती है एपीसी जो है वो फॉल होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सो यू मस्ट नो अबाउट द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. You must know about the average propensity to consume. Excuse me.
So average propensity to consume is simply the ratio of consumption to income is called average propensity to consume. The ratio of consumption to income is called average propensity to consume. So the second major assumption of Keynesian consumption theory is that average propensity to consume falls as income rises. कि जैसे इनकम इंक्रीज करेगी तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो फॉल करेगा. बेसिकली ये क्यों फॉल करता है? क्योंकि इस थ्योरी के मुताबिक जो है वो सेविंग के प्रपोर्शन में इजाफा होना शुरू हो जाता है. सो income is the main determinant of consumption. The third major assumption is that income is the main determinant of consumption. So Keynesian consumption theory is basically depends upon on these three conjectures, Keynes conjectures. Here is the graphical representation of Keynesian consumption function. Here you can see that C consumption is equal to autonomous consumption प्लस इंड्यूस कंजम्पशन. दो कंपोनेंट है कंजम्पशन के. एक सी बार जो है दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन. इट रिप्रेजेंट्स दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर इवन मेड ऑन जीरो इनकम. ये ऐसे एक्सपेंडिचर को जाहिर करता है जो आप हर हाल में बियर करते हैं, हर हाल में आप कंजम्पशन करते हैं, ये उनको जाहिर करता है. एंड स्मॉल सी वाई इज इंड्यूस कंजम्पशन. इट इज दैट पार्ट ऑफ कंजम्पशन विच डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम. And this small c is also named as a MPC. This small c is marginal propensity to consume. And here is the graphical representation. Here you can see that ये देखें आप कि ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ, ये ऊपर से स्टार्ट है. ये जो ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज नेम्ड एज ऑटोनोमस कंजम्पशन. ये बेसिकली ऑटोनोमस कंजम्पशन को जाहिर कर रहा है. यहाँ पे इनकम का लेवल जीरो है, बट स्टिल यू आर कंज्यूमिंग समथिंग, एंड दिस इज ऑटोनोमस कंजम्पशन. देन आप देखें कंजम्पशन इंक्रीज कर रही है इनकम इंक्रीज होने के साथ, और ये इंड्यूस कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड दिस इज स्लोप, एंड स्लोप इज नेम्ड एज अ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. Here, as income rises, consumers save a bigger fraction of their income, so APC falls. जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करेगी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो फॉल करेगी. जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करेगी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो फॉल करेगी. बेसिकली इसकी रीजन जो है वो ये है कि सेविंग का पोर्शन जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. मतलब ये नहीं है कि इनकम बढ़ने पर आपकी कंजम्पशन नहीं बढ़ रही, इनकम बढ़ने पर कंजम्पशन बढ़ती है, ठीक है. लेकिन जो सेविंग का प्रपोर्शन है, ऑब्वियसली एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1. सो एपीसी जो है वो जैसे इनकम बढ़ेगी, एपीसी जो है विल फॉल, मींस एपीएस विल राइज, बिकॉज एपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एपीएस. तो अगर कंजम्पशन का पोर्शन कम हो रहा है, इट मींस कि सेविंग का पोर्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है. तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो सेविंग का प्रोपोर्शन जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जिससे एपीसी जो है वो फॉल होना स्टार्ट हो जाएगी. अर्ली इंपीरिकल सक्सेस रिजल्ट्स फ्रॉम द अर्ली स्टडीज. बेसिकली ये दीज आर द जस्टिफिकेशन ऑफ Keynesian consumption theory. Households with higher income, they are consume more, so MPC is greater than 0, and they are save more, so MPC is less than 1. मतलब एक रीजनेबल इनकम है. अगर आप इसको बहुत कम इनकम पे अप्लाई करेंगे तो मे बी इसकी एप्लीकेशन इसके एडवर्स आए, लेकिन अगर आप एक रीजनेबल इनकम के बाद इसको चेक करें, मतलब बहुत थोड़ी इनकम है अगर, तो जितनी मेरी इनकम बढ़ेगी उतनी मेरी कंजम्पशन बढ़ जाएगी. ऐसा पॉसिबल है, और शायद कंजम्पशन उससे ज़्यादा बढ़ जाए. मैं बोरिंग लेके गुजारा कर रहा हूँ. लेकिन अगर रीजनेबल इनकम, इसलिए लिखा है हाउस होल्ड विद हायर इनकम, तो उस पर बिल्कुल ये सूट बैठ रहा है कि वो कंजम्पशन भी ज़्यादा करते हैं इनकम बढ़ने के साथ, तो एमपीसी ग्रेटर देन 0 है. वो सेव भी ज़्यादा करते हैं, सो एमपीसी इज लेस देन 1. सो दिस इज द जस्टिफिकेशन दैट के एमपीसी की लिमिट जो है वो 0 और 1 के दरमियान है. सेव अ लार्जर फ्रैक्शन ऑफ देयर इनकम, सो एपीसी विल फॉल एज इनकम राइजेस. सो जो उस मतलब केंजियन कंजम्पशन फंक्शन के बाद बहुत सारी रिसर्च हुई इन टॉपिक्स पे.
So they found the rationale in favor of Keynesian consumption theory as presented here. So very strong correlation between income and consumption. Income seemed to be the main determinant of consumption. So जो early empirical evidences थी that was in favor of Professor Keynes consumption function theory. Here are some problems identified after that in the Keynesian consumption function. Obviously further research होती है तो उसमें कुछ आप मतलब आप ये कह सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स हाईलाइट हुए, कुछ पजल्स हाईलाइट हुए, कुछ क्रिटिसिज्म हुआ. Based on the Keynesian consumption function, economists predicted that C would consumption would grow more slowly than Y over time. Consumption would grow more slowly than income over time. कंजम्पशन को जो है वो ग्रो करती है आहिस्ता से एज कंपेयर टू इनकम. सो दिस प्रेडिक्शन डिड नॉट कम ट्रू as income grew, APC did not fall and C grew at the same rate as income. Furthermore, Simon Kuznert, another economist, showed that consumption to income was very stable from decade to decade. So basically, with the passage of time, it has been observed that APC did not fall with the increase in income. इनकम तो इंक्रीज हो रही है लेकिन एपीसी फॉल नहीं कर रहा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल नहीं कर रहा. मींस दैट कि जो कंजम्पशन और इनकम का पैटर्न है वो सेम चल रहा है. मतलब इनकम भी बढ़ रही है, साथ में कंजम्पशन भी बढ़ रही है. मींस दैट कि कंजम्पशन टू इनकम रेशियो इज वेरी स्टेबल फ्रॉम डेकेड टू डेकेड. देखने में आ रहा है कि जो एपीसी है दैट इज वेरी स्टेबल, वो डिक्लाइन नहीं हो रही विद पीरियड टू पीरियड. सो इससे एक पजल जनरेट हुआ जिसे हम केन्स कंजम्पशन पजल कहते हैं, which was generated by the contribution of Simon Kuznert. So here you can see that consumption function from long-term time series data. Here constant average propensity to consume and consumption function from cross-sectional household data where APC is falling. अगर हम लॉन्ग टर्म टाइम सीरीज जो है डाटा वो कलेक्ट करें तो उसमें इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट के एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो कांस्टेंट रहती है फ्रॉम डेकेड टू डेकेड. हाँ, अगर शॉर्ट टर्म के लिए हम देखें तो उसमें जो है वो केन्स की कंजम्पशन थ्योरी जो है वो वैलिड हो सकती है कि जो डाटा है वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो फॉल कर रही है एज इनकम राइजेज. और अगर देखा जाए तो प्रोफेसर केन्स जो है वो वैसे भी शॉर्ट टर्म पे बिलीव रखने वाला था, तो उसके मुताबिक तो ये बिल्कुल ठीक था. लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो थी वो कांस्टेंट थी. सो ये रेड लाइन जो है ये लॉन्ग टर्म एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को जाहिर कर रही है 45 डिग्री लाइन पे, ऑब्वियसली जो कांस्टेंट एपीसी को जाहिर करी है. जबकि ये जो 45 डिग्री लाइन, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये जो है बेसिकली प्रोफेसर केन्स के मुताबिक जो है वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विच इज फॉलिंग एज इनकम राइजेस. That is more flatter than the long-term consumption function curve. यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क. हमने केन्जियन कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा है और उस पर क्रिटिसिज्म पढ़ा है बाय साइमन कुजनेट. इज देयर एनी क्वेश्चन हियर? No, sir. All right. The second theory of consumption is Irving Fisher, which is intertemporal budget choices. इंटरटेम्पोरल बजट चॉइसेस. बेसिकली ये इंटरटेम्पोरल का मतलब है जिसमें हम एनालाइज करते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को. इट मींस इंटरटेम्पोरल बजट चॉइसेस. दिस थ्योरी presented by Professor Irving Fisher. The basis for much subsequent work on consumption assumes consumer is forward looking and chooses consumption for the present and future to maximize lifetime satisfaction. कि जो कंजम्पशन का डिसीजन है
ये प्रेजेंट कंजम्पशन, प्रेजेंट इनकम और फ्यूचर इनकम दोनों को मद्देनजर रखते हुए जो है वो किया जाता है। मतलब आपने, मैं आपको एक वेरी स्मॉल एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपने मोबाइल कंजम्पशन करनी है, प्रेजेंट कंजम्पशन करनी है, मोबाइल फ़ोन परचेज करना है, तो आप अपनी जो है वो सिर्फ प्रेजेंट टाइम को नहीं देखेंगे, आप ये भी देखेंगे, मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म पीरियड की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप पूरा महीना देखेंगे कि अभी अगर आप कंजम्पशन कर लेते हैं, मोबाइल फ़ोन परचेज कर लेते हैं, तो पूरा महीना जो है वो कैसे गुजारा करेंगे, तो आप ये भी आप एनालाइज करते हैं। इट मीन्स के जो कंजम्पशन है आपकी वो सिर्फ करंट इनकम पे, करंट टाइम पीरियड पे डिपेंड नहीं करती, वो फ्यूचर टाइम पीरियड पे भी डिपेंड करती है, in order to maximize the lifetime satisfaction. So consumer choices are subject to intertemporal budget constraint, means past, present और future को जो है वो budget constraint आपके सामने होते हैं। सिर्फ present budget constraint नहीं होता, सिर्फ प्रेजेंट बजट कंस्ट्रेंट नहीं होता, बल्कि फ्यूचर बजट कंस्ट्रेंट जो है वो भी आपके सामने होता है। अ मेजर ऑफ टोटल रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंजम्पशन। Here is the basic two period model. Period 1 the present period and period 2 the future period. Y1 and Y2 इनकम इन Y1 जो है वो इनकम इन वन पीरियड, पीरियड 1, और Y2 जो है इनकम इन पीरियड 2, ऑब्वियसली फ्यूचर। C1 कंजम्पशन इन पीरियड 1, C2 कंजम्पशन इन पीरियड 2, इसको याद रखिएगा। ऑब्वियसली सेविंग इन पीरियड 1, सेविंग क्या होगी, Y1 माइनस C1। Y1 क्या है, मतलब पीरियड 1 की इनकम, और C1 क्या है, पीरियड 1 की कंजम्पशन। तो Y माइनस C जो है ये आपका सेविंग होगा, सेविंग इन पीरियड 1, और ये सेविंग जो है दैट इज लेस देन जीरो इफ कंज्यूमर बोरोज इन पीरियड 1। ऑब्वियसली ये नेगेटिव में होगा अगर कंज्यूमर जो है वो पीरियड 1 में जो है वो बोरो कर रहा है, प्रेजेंट में वो बोरो कर रहा है। So deriving the intertemporal budget constraint, here period 2 budget constraint is C2, that is equal to, अब पीरियड 2 की जो कंजम्पशन है वो डिपेंड करती है पीरियड 2 की इनकम पे, प्लस प्लस जो आपने पीरियड 1 में सेविंग की थी, ऐसे ही है कि नहीं। फ्यूचर की कंजम्पशन जो है वो डिपेंड करती है फ्यूचर इनकम पे, प्लस जो आपने फ्यूचर 1 में सेविंग की थी, और ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट रेट, उस पर सेविंग किया उस पर इंटरेस्ट रेट भी लगा होगा। सो 1 प्लस आर एस। इज देयर एनी कंफ्यूजन, इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। सर अगेन रिपीट कर दें एक दफा। सही, बैंक Alright. में सेविंग किया तभी interest अगर होगा बैंक्स तो वगैरह में ये अपने बेटा देखें, अगर आर होगा तो ठीक है, वरना जीरो हो जाएगा ना। अगर आपने हाँ आपने जी, इस पे ठीक इंटरेस्ट लिया है तो ठीक है, अदरवाइज जीरो है। अगर आपने इंटरेस्ट नहीं लिया तो ठीक है, जी। जीरो है। सो पीरियड 2 बजट कंस्ट्रेंट, C2 consumption of period 2 that is equal to income of period 2, फ्यूचर इनकम, मतलब अगर कोई पेंशन वगैरह मिल रही है, मैं इस तरह कह लेता हूँ चलें, प्लस सेविंग इन द पीरियड 1, 1 प्लस आर एस, ठीक है। वो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई हो रही है, अगर इंटरेस्ट रेट होगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। सो हियर प्लगिंग द वैल्यू ऑफ एस, Y1 माइनस C1, सेविंग इज इक्वल टू, सेविंग चूंकि ये पीरियड 1 की सेविंग है, तो Y1 माइनस C1, एस की वैल्यू जो है वो प्लग की है। सो रीअरेंजिंग टर्म्स, मैंने जस्ट रीअरेंज किया है। ये देखें 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, और R भी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। आप ये कह लें कि ये Y1 भी है और ये C1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा ऑब्वियसली। तो ये हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, C1 माइनस C1 है ना, माइनस C1 इंटू 1 प्लस आर, इस टर्म को जो है हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो ऑब्वियसली ये प्लस में हो गई है। 1 प्लस आर C1 प्लस C2 दिस वन, Y2 प्लस 1 प्लस आर Y1। सो आप देख सकते हैं कि एक साइड पे कंजम्पशन आ गई है और एक साइड पे हमारे पास इनकम आ गई है। डिवाइड थ्रू बाय 1 प्लस आर, दोनों साइड पे हम 1 प्लस आर से हमने डिवाइड किया है। सो C1 प्लस C2 ओवर 1 प्लस आर,
दैट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 ओवर 1 प्लस r, जस्ट 1 प्लस r से जो है वो दोनों साइड से डिवाइड किया है. सो जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइफ टाइम कंजम्पशन. दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइफ टाइम कंजम्पशन. और जो राइट साइड पे है वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइफ टाइम इनकम. इट मींस बेसिकली इरविंग फिशर यही कह रहा है ना कि जो कंजम्पशन डिसीजन है वो सिर्फ प्रेजेंट इनकम पे डिपेंड नहीं करता, वो लाइफ टाइम इनकम पे डिपेंड कर रहा है ना. वो प्रेजेंट प्लस फ्यूचर दोनों पे डिपेंड कर रहा है. सो ये आपके सामने जो है वो एक साइड पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइफ टाइम कंजम्पशन आ गया और दूसरी साइड पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइफ टाइम इनकम आ गया. बोथ मस्ट बी इक्वल ऑब्वियसली. So here you can see that the graphical representation, C1 on the x-axis consumption in period 1 and C2 consumption is in period 2 is on the y-axis, and here is the budget constraint consumption, here is the budget constraint saving and borrowing. This one is y1 y2 obviously. और करंट पीरियड में जो सेविंग होगी वो यूज होगी ऐड होगी सेकंड पीरियड की कंजम्पशन में जाके. सो हियर इज द बजट कंस्ट्रेंट टुवर्ड्स एक्स एक्सिस y1 प्लस y2 ओवर 1 प्लस r. पीरियड 1 की कंजम्पशन किस पे डिपेंड करेगी? इनकम ऑफ पीरियड 1 प्लस इनकम ऑफ पीरियड 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r. जो प्रीवियस थ्योरी थी, अगर आप इसको प्रीवियस थ्योरी से कंपेयर करते हैं तो उसमें था कि जो करंट कंजम्पशन है वो करंट ईयर इनकम पे डिपेंड करती है. लेकिन इसमें सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है. इसमें जो बजट कंस्ट्रेंट बन रहा है वो सिर्फ करंट इनकम के लिहाज से नहीं बन रहा. जो बजट कंस्ट्रेंट बन रहा है वो सिर्फ करंट पीरियड की इनकम के लिहाज से नहीं बन रहा, बल्कि फ्यूचर में जो इनकम मिलनी है उसके लिहाज से बन रहा है. तो C1 ये जो बजट कंस्ट्रेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कंजम्पशन 1 की लाइन से, दैट इज इक्वल टू, it depends upon income of the current period plus income of the second period divided by 1 plus r. On the same way कि जो पीरियड 2 की कंजम्पशन है वो डिपेंड करेगी y2 पे, मतलब इनकम ऑफ पीरियड 2 प्लस 1 प्लस r ऑफ इनकम 1 के इनकम पीरियड ऑफ इनकम 1 सॉरी period income of period 1, ठीक है, which is multiply 1 plus r. So the budget constraint shows all combination of C1 C2 that just exhausts the consumers resources. Obviously इसी budget constraint पर ही परचेजिंग होगी. इससे जो आउटसाइड हैं वो अनअसेसिबल रिसोर्स हैं और इसके जो अंदर हैं वो असेसिबल रिसोर्स हैं. So the slope of this budget line is minus 1 plus r. The slope of this budget line is, because budget obviously जो slope है वो change को जाहिर कर रहा है कि अगर to increase in C1 by 1 unit the consumer must sacrifice 1 plus r units of C2. अगर पीरियड 1 की कंजम्पशन में हम 1 यूनिट का इजाफा करते हैं तो ऑब्वियसली आपको 1 प्लस आर यूनिट्स ऑफ पीरियड 2 की कंजम्पशन वो आपको सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे. हियर दिस वन, टू इंक्रीज C1 बाय 1 यूनिट द कंज्यूमर मस्ट सैक्रिफाइस 1 प्लस आर यूनिट्स ऑफ C2. सो 1 प्लस आर इज द स्लोप ऑफ दिस बजट लाइन. So here is the consumer preferences. Obviously you are required to indifference curve as well for consumer equilibrium. हमने बजट कंस्ट्रेंट ड्रा किया है और बजट कंस्ट्रेंट जो है वो सिर्फ करंट इनकम को मद्देनजर रखते हुए नहीं बल्कि इनकम ऑफ पीरियड 1 एंड इनकम ऑफ पीरियड 2. So here is the indifference curve which shows all combination of C1 and C2 that makes the consumer equally happy. And obviously higher indifference curve shows the higher level of satisfaction. And the slope of indifference curve is MRS, marginal rate of substitution. The amount of C2
the consumer would be willing to sacrifice for 1 unit of C1. ऑब्वियसली अगर आपने पीरियड 1 में कंजम्पशन बढ़ानी है तो पीरियड 2 की कंजम्पशन कुछ सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। अगर आपने पीरियड 2 की कंजम्पशन बढ़ानी है तो पीरियड 1 की कुछ कंजम्पशन आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, या पीरियड 1 की कंजम्पशन बढ़ानी है तो पीरियड 2 की कंजम्पशन सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। दिस इज MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, which is a slope of indifference curve. And here is the optimization or equilibrium of the consumer. The optimal C1 C2 is where the budget line just touches the highest indifference curve. Budget line just touches the highest indifference curve. So ये obviously ये तीन indifference curve रहा है, ये highest possible indifference curve के साथ tangent बनाएगा indifference curve, वहां पे equilibrium होगा। MRS is the slope of indifference curve and 1 plus R is the slope of budget line. और जब जहां पे दोनों की slopes equal होंगी, that was the equilibrium. Now how consumption responds to change in income? अगर आपकी इनकम चेंज होती है तो कंजम्पशन जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है? An increase in income Y1 to Y2 in Y1 और Y2 shifts the budget line to the outward. चाहे इनकम आपकी पीरियड 1 में चाहे पीरियड 2 में इंक्रीज करती है तो आपका बजट लाइन तो ऑब्वियसली आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, प्रोवाइडेड दैट बोथ आर नॉर्मल गुड्स ऑफ C1 C2 बोथ विल इंक्रीज। कंजम्पशन 1 कंजम्पशन 2 दोनों पीरियड में कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी सिंपली, और ये इक्विलिब्रियम जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। केन्स वर्सेस फिशर। प्रोफेसर केन्स के मुताबिक करंट कंजम्पशन डिपेंड्स ओनली ऑन करंट इनकम, while on the other hand according to Professor Fisher current consumption depends only on the present value of lifetime income. Current consumption depends only on the present value of lifetime income. The timing of income is irrelevant because the consumer can borrow or lend between two periods. केन्स के मुताबिक जो है वो जो करंट कंजम्पशन है वो करंट इनकम पे डिपेंड करती है, लेकिन प्रोफेसर फिशर के मुताबिक जो करंट कंजम्पशन है वो डिपेंड करती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइफ टाइम इनकम। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइफ टाइम इनकम, दिस इज द मेजर डिफरेंस। सो हाउ सी रिस्पॉन्स टू चेंज इन आर। पहले हमने देखा कि कंजम्पशन कैसे रिस्पॉन्ड करती है एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इनकम। नाउ वी आर ऑब्जर्विंग दैट हाउ कंजम्पशन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो कैसे रिस्पॉन्ड करती है? अब देखें, an increase in the interest rate pivots the budget line around the point Y1 Y2 as depicted here. C1 falls and C2 rises, however it would turn out differently. अब देखें इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है करंट पीरियड में, तो क्या करेंगे आप? C1 कंजम्पशन ऑफ पीरियड 1 जो है वो आप कम करेंगे, क्योंकि आपकी कोशिश होगी कि आप सेविंग ज़्यादा करें ताकि इंटरेस्ट रेट से फ़ायदा उठा सकें। और वो सेविंग कहाँ पे काम आएगी? ऑब्वियसली C2 की जो पीरियड 2 की कंजम्पशन है वो इंक्रीज करेगी। C1 की इनकम फॉल करेगी और C2 की इनकम जो है वो राइज करेगी। बेसिकली देयर आर टू इफेक्ट्स, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दोनों का इफेक्ट डिफरेंट होगा, दोनों में एक्सप्लेन कर देता हूँ। How consumption responds to change in interest rate? There are two effects. First one is income effect, second one is substitution effect. If consumer is a saver, the rise in interest rate makes him better off, which tends to increase consumption in both periods. Income effect ये है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि इनकम 1 में भी यूज हो रहा है, इनकम 2 में भी यूज हो रहा है, पीरियड 1 की इनकम में भी पीरियड 2 की इनकम में भी, तो दोनों पीरियड की कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। दिस इज इनकम इफेक्ट। बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज डिफरेंट एज प्रेजेंटेड इन द प्रीवियस डायग्राम, जो डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया था। दोबारा एक्सप्लेन करता हूं।
The rise in interest rate increases the opportunity cost of current consumption, which tends to reduce C1 and increase C2. अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, जो करंट कंजम्पशन है, करंट पीरियड की कंजम्पशन है, वो आप कम करेंगे, सेविंग ज्यादा करेंगे। और सेविंग ऑब्वियसली जब ज्यादा होगी, इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा है, सेविंग भी ज्यादा है, तो पीरियड 2 की कंजम्पशन जो है वो ज्यादा होगी, पीरियड 2 की कंजम्पशन जो है वो ज्यादा होगी। दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और अगर दोनों की कंजम्पशन बढ़ा देंगे तो वो इनकम फैक्टर, दोनों पॉसिबल है। सो बोथ इफेक्ट सिंपली whether C1 rises or falls depends on the relative size of income and substitution effect. यहां तक आप कर लीजिएगा, इतना एनफ है आप लोगों के लिए। इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क।